করব, আমি জিতেন্দ্র চৌধুরী সাহেবকে বলবো আমাদের পার্টির পক্ষ থেকে তিপ্রামথা জাতিসত্তা রক্ষার্থে সংবিধানের ভিতরে থেকেই আমরা এই দাবি তুলছি। এবং অসাংবিধানিক যদি কিছু হয়ে থাকে, লেট সিপিআইএম পার্টি গো টু দি কোর্ট অ্যান্ড চ্যালেঞ্জ যে এটা অসাংবিধানিক। ইমোশনের কি ব্যাপার আছে? তিপ্রাসারা আজকে বুঝতে পেরেছে যে এখানে আমাদের জাতিসত্তা রক্ষা করা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। আর মহারাজা পরিষ্কারভাবে বলেছেন তিপ্রামথার উদ্দেশ্য কোনো অন্য জাতিকে ক্ষতি করতে নেই এবং ওনাদের অধিকার আমরা নষ্ট করব না, আমরা শুধু আমাদের অধিকার চাইছি। যে এডিসি, আজকে এডিসির কথা বলবো, আগে তো ছিলাম না এডিসিতে ক্ষমতায় বসার পর আমরা দেখেছি এই 14 লক্ষ তিপ্রাসাদের উন্নয়নে মাত্র 97 কোটি টাকা এস্টিমেটেড বাজেট, যেটা স্টেট গভর্নমেন্ট মেনে নিয়েছে। এবং সেখান থেকে আজকে 1 মাসের মধ্যে এই ফাইন্যান্সিয়াল ইয়ার চলে যাবে, মাত্র আমাদেরকে 32 কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে। কি উন্নয়ন হবে? কি উন্নয়ন হবে? এবং এইগুলিকে নিয়ে কেউ মাথা ঘামায়নি কখনো। আমরা বলছি যে এই যে তিপ্রাসাদের প্রতি বঞ্চনা, এই বঞ্চনার একমাত্র প্রতিকার হচ্ছে আমাদেরকে আমাদের মতো করে থাকতে দিন। যারা আমাদের চেয়ে অন্য ধরনের মানুষ, ভিন্ন ধরনের মানুষ, ওনার মতো করে থাকতে দিন। আমরা তো কাউকে অসম্মান করছি না এবং এডিসি দিয়েও তিপ্রাসাদের উন্নয়ন হচ্ছে না, এটা আমরা জানি। দ্যাট ইজ ওয়াই উই আর ব্রিঙ্গিং দি ডিমান্ড অফ গ্রেটার তিপ্রাল্যান্ড এবং সেই দিনের জন্য আমরা অপেক্ষা করব। জিতেন্দ্র বাবু নিজেও কিন্তু গ্রেটার তিপ্রাল্যান্ডের মধ্যে থাকবেন, আমরা দাবি করছি। এবং ইতিহাস বলে এই এডিসির জন্য লড়াই করেছে আঞ্চলিক দল, পরবর্তী সময় সিপিএমরা চান্স পেয়েছে এখানে ক্ষমতায় বসার জন্য। সো এগেইন ইউ উইল সি উই আর ডিমান্ডিং ফর আওয়ার এক্সিস্টেন্স। পরবর্তী সময় ওনারা বলবেন আমরাও দাবি তুলেছি। উই আর নট প্লেইং উইথ ইমোশন, দিস ইজ দি রাইট কজ, রাইট ডিমান্ড। এবং বাঙালিরা বাঙালিদের মতো থাকবেন, মণিপুরীরা মণিপুরীদের মতো থাকবেন, আমরা আমাদের মতো করে থাকতে চাই। অ্যান্ড দি ফ্রেন্ডশিপ উইল রিমেইন এজ ইট ইজ। কখনোই আমাদের সম্প্রীতি নষ্ট হবে না। ওনারা তো শুধু সাইনবোর্ড লিখে বলেছেন জাতি উপজাতি আমরা সম্প্রীতি রক্ষা করব, আমরা কাজের মাধ্যমে দেখাবো যে আমরা সত্যিকারের সম্প্রীতি চাই। থ্যাংক ইউ। तन्मय, जो आपने कहा है रिगार्डिंग जितेंद्र चौधरी, लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर उन्होंने कहा है कि ग्रेटर तिप्रालैंड इज नॉट पॉसिबल और हम अगर लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, तो एज यू राइटली सेड, पीयूष बिस्वास इज राइट हियर, दे कैन गो टू हाई कोर्ट and file a 420 केस अगेंस्ट तिप्रामथा, 420 का केस अंडर 420 कि हम लोगों को धोखा दे रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा है कि आप अलग स्टेट का डिमांड नहीं कर सकते। जितेंद्र चौधरी तो एमपी भी थे, जाकर ये कोर्ट में केस फाइल कर दीजिए कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में तिप्रामथा का डिमांड है ही नहीं। अगर ये फाइल करेंगे और कोर्ट ये ऑर्डर पास करता है कि सेपरेट स्टेट डिमांड करने का कोई पार्टी का अधिकार नहीं है, तो हम माफी मांगने के लिए तैयार हैं। दूसरा बात है, जितेंद्र चौधरी ने बोला है कि हम लोग पब्लिक को सेंटिमेंट करा रहे हैं। मैं जितेंद्र चौधरी को बोलना चाहता हूं कि आप अपना दिल का बात कीजिए। मैं आपको बहुत सम्मान करता हूं, व्यक्तिगत तौर से मैं जितेंद्र चौधरी को सम्मान करता हूं, और जो आपको बोला गया है बोलने के लिए वो मत बोलिए। यही बात अगर मानिक सरकार बोल दे तो मैं सुनने के लिए तैयार हूं, लेकिन मानिक सरकार ये बात नहीं बोलेगा, जितेंद्र चौधरी से बुलवाएगा। तो जब तक मानिक सरकार ये बात बोलेगा तब मैं उसका रिस्पॉन्स दूंगा। जब तक जितेंद्र चौधरी ये बोलते रहेगा, मैं जानता हूं चाबी कोई और लगा रहा है, बोल रहा जितेंद्र चौधरी है। हाँ, तो अभी बहुत से राज्यों में इलेक्शन हो रहा है। हाँ, तो आप लोग क्या चाहते हैं कि इसमें भी कोई पॉलिटिकली कुछ है? देखिए, मैंने एक बात बोला है। मैंने तो ये बात आप लोग थोड़ा सा समझ लीजिए। मैंने तो ये भी कहा है कि विदाउट सिंबल इलेक्शन कीजिए। मैं नहीं चाहता हूं कि गांव में आप बीजेपी, सीपीएम, कांग्रेस, तिप्रामथा, आईपीएफटी फाइट करे। विदाउट सिंबल कीजिए, जैसे कि
उत्तर प्रदेश में होता है, राजस्थान में होता है, महाराष्ट्र में होता है। पॉलिटिक्स को गांव में क्यों ले जाना चाहते हैं? विलेज काउंसिल इलेक्शन गांव का डेवलपमेंट के लिए है। मैं नहीं चाहता हूं कि आप विलेज लेवल में भी सिंबल लगाकर फाइट कीजिए, विदाउट सिंबल फाइट कीजिए। जो अच्छा व्यक्ति है उसको गांव वाला चूज करेगा। डेवलपमेंट गांव का होना चाहिए, डेवलपमेंट मोथा का नहीं, या सीपीएम का नहीं, या बीजेपी का नहीं होना चाहिए। तो मैं तो चाहता हूं कि डेवलपमेंट हो। और अगर यूपी में इलेक्शन हो सकता है, मणिपुर में इलेक्शन हो सकता है, त्रिपुरा में म्यूनिसिपल का इलेक्शन हो सकता है, तो यहां में क्यों नहीं? तो मैं ये बात क्लियरली बोलना चाह रहा हूं कि आप लोग इलेक्शन कंडक्ट कीजिए। और अगर आप, मेरा तो सुझाव है कि विदाउट सिंबल कीजिए, तो असली जो डेमोक्रेसी है वो पार्टी के से भी बड़ा होकर जो जनप्रतिनिधि है उसके पास आएगा। मैं तो ये चाह रहा हूं कि विलेज काउंसिल इलेक्शन हो, और हमने इतने दिन से मांग किया है। और अगर पैसा नहीं आया, इलेक्शन नहीं हुआ, पैसा नहीं आएगा, तो सफर कौन करेगा? एक गांव वाला। और हमने पूरा ही नहीं, तो ये सब निकालते निकालते हमको बहुत समय लगा, लेकिन हमारे पास ऑलमोस्ट 70% का कागज निकला है। कहाँ में एक्सपेंडिचर हुआ है, कहाँ में एक्सपेंडिचर नहीं हुआ है। और मैं सच बात बोलता हूं कि सच बात है कि एडीसी में आज एडीसी एक सौतेला बेटा है ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। जब तक एडीसी में, जैसे कि जितेंद्र चौधरी बोलता है कि आपको ग्रेटर त्रिपुरा नहीं मिलेगा, मैं एक बात जितेंद्र चौधरी से पूछना चाहता हूं, आप क्या बोलना चाहते हैं कि जैसा एडीसी है वैसे ही रहना चाहिए? सब लोग यहां में, बीजेपी देमसेल्व्स 2018 के इलेक्शन के पहले उन्होंने ये बात कहा था कि हमको स्टेट काउंसिल चाहिए। बीजेपी का जनजाति मोर्चा ने खुद डिमांड किया था कि हमको स्टेट काउंसिल चाहिए। जब मैं टीपीसीसी का प्रेसिडेंट था, हमने मेमोरेंडम दिया था कांग्रेस पार्टी को थ्रू द एसटी सेल एंड थ्रू द स्टेट कांग्रेस कि आर्टिकल 244A होना चाहिए इन त्रिपुरा। आईपीएफटी का डिमांड था त्रिपुरा लैंड। सब पार्टी ने अग्री किया था कि एडीसी जैसा आज है वो ठीक नहीं है, इंप्रूवमेंट होना चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स आना चाहिए। आज क्योंकि इलेक्शन में वो लोग नहीं जीत रहे हैं इंडिजिनस एरिया में, तो उन्होंने अपना पूरा भाषा ही बदल दिया है। और रहा बात आपका व्हाइट पेपर का, व्हाइट पेपर मैं चाहता हूं आने के लिए। इनफैक्ट जब व्हाइट पेपर आएगा तभी लोगों को मालूम पड़ेगा कि 70% एरिया जो त्रिपुरा में है उसके लिए ओनली 5% फंड जा रहा है। ये अन्याय है। और इसमें मैं फिर से बोल रहा हूं कि ये गलत तरीके से लोग बोल रहे हैं कि बंगाली ट्राइबल प्रॉब्लम है। एक्चुअली इंडिजिनस त्रिपुरा सा बंगाली प्रॉब्लम है ही नहीं। ये प्रॉब्लम क्रिएट किया गया है न्यू दिल्ली के गवर्नमेंट के पॉलिसी के लिए। इसी के लिए मैं न्यू दिल्ली को बोलना चाह रहा हूं कि ये प्रॉब्लम इंडिजिनस त्रिपुरा सा और बंगाली का है ही नहीं। दिल्ली ने ये प्रॉब्लम किया है, अब दिल्ली को ये प्रॉब्लम का एक सुझाव निकाल के आना चाहिए। कुछ दिन पहले आप जुलाईबाग में गए थे, वहाँ पर ज्यादा की जो भूख संग्राम के हॉलीडे आप लोग चलाए। गुरु नहीं, सांग्रोमा तो देबर्मा भी करते हैं, जमातिया भी करते हैं। सांग्रोमा हमारा देवी है, तो उसके दिन हमको छुट्टी करना चाहिए। हम जब बुद्ध पूर्णिमा के लिए करते हैं, क्रिसमस के लिए करते हैं, गुरु नानक के जन्मदिन के लिए करते हैं, तो अपना कल्चर सांग्रोमा के लिए, होजागिरी के लिए हम लोग क्यों नहीं करें? बाबा गरिया के लिए क्यों नहीं करें? इसमें क्या खराबी है? हम लोग दुर्गा पूजा करते हैं। अब तो गणपति बप्पा का एक नया वो निकला है, गणपति बप्पा का यहाँ में कल्चर आ गया है। तो अगर हम वो सब कर सकते तो हम अपने भगवान को, अपने कल्चरल आइडेंटिटी को क्यों नहीं हम लोग कर सकते? এডিসি এলাকায় বিভিন্ন জায়গাতে এখনো রাস্তাঘাট পানীয় জলের একটা সমস্যা রয়েছে, বারবার তারা দাবি করে আসছে। এই যে সমস্যাগুলি রয়েছে সেগুলো ওয়াটার ইজ নট আন্ডার আস তৎপর এবং আগামী দিনে কি কি পরিকল্পনা নিচ্ছে? ওয়াটার ইজ নট আন্ডার আস। সেই ডিডব্লিউএস ড্রিঙ্কিং ওয়াটার এবং স্যানিটেশনের যে প্রোগ্রাম আমাদের কাছে 1 টাকাও নেই। এই ডিপার্টমেন্টটা আমাদের না। দিস ডিপার্টমেন্ট ইজ কন্ট্রোলড বাই স্টেট গভর্নমেন্ট এবং 90% of the roads in ADC area is controlled either by the state government or by the central government. 10% আমাদের যেখানটায় আছে আমরা চেষ্টা করছি। And you must know this fact also যে 360 কিলোমিটার এডিসির রাস্তার জন্য আমাদেরকে মাত্র 3.5 কোটি টাকা দেওয়া হচ্ছে। Whereas I am telling you একটা পাকা সড়ক তৈরি করার জন্য 1 কিলোমিটারে 1 কোটি টাকার দরকার। ইট ইজ দি বাজেট।
এবং সেখানে আমাদের 360 কিলোমিটার রাস্তার জন্য Only 3 3.5 কোটি টাকা দেওয়া হচ্ছে। কি ডেভেলপমেন্ট হবে? তারপরও আমরা চেষ্টা করছি। এবং এই যে হোয়াইট পেপারের কথা আপনারা বলছেন, হোয়াইট পেপার মহারাজা যেটা বলতে চেষ্টা করেছেন যে হোয়াইট পেপার প্রকাশ করার জন্য আমাদের তো ডেটা কালেক্ট করতে হবে। 37 বছর আমরা গিয়ে দেখেছি যে এখানে ডাটা কালেকশনের কোনো সিস্টেমই ছিল না। উই আর ট্রাইং টু ডিগ আউট, যেখান থেকে বিক্ষিপ্তভাবে যে ডেটাগুলো পাচ্ছি এগুলোকে আমরা কনসলিডেট করার চেষ্টা করছি। তবে একটা জিনিস আপনাদের বলতে পারি যে 20 বছর ধরে একটা বাজেটের গ্যাপ রেখে বিভিন্ন সময় রাজ্য সরকার যেভাবে বঞ্চনা করেছে, ক্যালকুলেট করে দেখেছি 581 কোটি টাকা আমাদের পেতে হয় রাজ্য সরকার থেকে। আর আমাদের আসলে প্রাপ্যটা কি? ইউ হ্যাভ রেইজ ভেরি গুড কোয়েশ্চেন যে ত্রিপুরার জনসংখ্যার 31% হচ্ছে তিপ্রাসারা, এবং এই 31% থেকে 85% তিপ্রাসারা বসবাস করছে এডিসি এলাকায়। তাহলে আমাদের 31% ট্রাইবেল সাবপ্ল্যানের যে টাকা 7,500 কোটি, এই 7,500 কোটি টাকার 85% টাকা এডিসিকে দিতে হয়। সো ইট কামস অ্যারাউন্ড 6,000 crore। 6,000 crore জায়গায় মাত্র 584 কোটি টাকা আমাদের দেওয়া হয় এভরি ইয়ার। এবং এই 584 কোটি টাকা থেকে 97 কোটি টাকা হচ্ছে ডেভেলপমেন্ট ফান্ড। এই 97 কোটি টাকার মধ্যে মাত্র 32 কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে এই 11 মাসে। নাও ব্রাদার্স, ইউ টেল ডেভেলপমেন্ট কি করে সম্ভব হবে? তাহলে আপনারা রাজ্য সরকারের কাছে যে টাকা চাইছেন তা দেওয়া হচ্ছে না? ডেফিনেটলি নট, ডেফিনেটলি নট। इवन फ्रॉम द ओन बजट, इवन फ्रॉम द ओन बजट जो उन्होंने बोला वो देंगे, इवन दैट इज नॉट बीइंग फुलफिल्ड। दैट्स व्हाई वी हैव रिटन अ लेटर टू द फाइनेंस मिनिस्टर, द डेप्यूटी सीएम, and we are asking, I think Animesh, you should put that letter in record, Yes, that yes. this money should be এবং given. গতকাল অর্থমন্ত্রীর সাথে আমার মিটিং হয়েছে, ওনাকে বললাম যে আপনারা 190 কোটি টাকা যদি আমাদেরকে না দিন, উই ক্যানট পে স্যালারি ফর ফেব্রুয়ারি অ্যান্ড মার্চ। ফেব্রুয়ারির স্যালারি আমরা পে করতে পারছি না, কারণ আমাদের কাছে মাত্র 30 কোটি টাকা আছে। তো গতকাল টাকা চেয়েছি, এটা আমাদের প্রাপ্য। সি দেয়ার ইজ ওয়ান থিং, এস্টিমেটেড বাজেট, যেটা স্টেট গভর্নমেন্ট বলেছে হ্যাঁ আমি এই টাকা দেব, দিদিন কি হঠাৎ করে 11 মাসের টাকা দিয়ে বলেছে যে এই মার্চ মাসের টাকা নেক্সট ইয়ারে দিয়ে দেব। তো নেক্সট ইয়ার চলে যাচ্ছে, এটা টাকা পাচ্ছি না আমরা। তো এইবার দেখা গেছে এই বছরের 1 মাস, গত বছরের 1 মাস, 2 মাসের টাকা আমাদের কাছে নেই। তো উই আপিল থ্রু দি মিডিয়া, স্টেট গভর্নমেন্টের যিনি ফাইন্যান্স মিনিস্টার, উনি নিজেও একজন তিপ্রাসা, এসটি কনস্টিটিউয়েন্সি থেকে দাঁড়িয়েছেন, এবং নেক্সট ইলেকশনে উনি এসটি হয়ে দাঁড়াবেন নিশ্চয়ই। এবং তিপ্রাসাদের এই যে ব্যথা, এডিসির যে ব্যথা, আমার ব্যথা উনার ব্যথা, উনার ব্যথা আমাদের ব্যথা, নিশ্চয়ই উনি এই টাকা ব্যথা মোচনে দেবেন, এটা আমাদের আশা। मैं एक I'll give you one answer. आपने सुन लिया है कि क्या प्रॉब्लम है, इसके बाद आपको लगता है कि हम लोग ग्रेटर त्रिपुरा लैंड जो डिमांड कर रहे हैं वो ना गुंजाए, मतलब कि इट इज अनरीजनेबल? आज के दिन मैंने क्या बोला है कि एडीसी इज अ स्टेप चाइल्ड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। अगर आप हमारे संग आएंगे तो आपको पैसा मिलेगा, अगर आप हमारे संग नहीं आएंगे तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। तो मैं इसी के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से 12 तारीख को हमारा रैली है। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, आपने किसी ने कहा अमित शाह आएगा तो बात करेंगे, अगर निमंत्रण ओपनली मिला तो मैं जरूर बात करूंगा। ब्रूस शरणार्थी के लिए मैंने ओपनली बात किया, लेकिन मैं इसी के लिए 12 तारीख को हम लोग का रैली है कि हम सबको बताना चाह रहे हैं। यहां में एक रॉन्ग र्यूमर है कि हम एंटी एनी कम्युनिटी है, हम किसी के खिलाफ नहीं। हमने किसी का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं मांगा। मैंने नहीं कहा है कि आपके पॉकेट से 10 रुपए देकर मेरे पॉकेट में डाल दो। मैंने कहा कि जो हमारा अधिकार है वो हमको दो। और जब तक हम सिर्फ खुमुलुंग, अम्बासा, कंचनपुर, जुलाईबारी, साबरूम, रायमा वैली में प्रोग्राम करेंगे तो अगरतला के लोगों को भी मालूम नहीं पड़ेगा कि हम क्या डिमांड कर रहे हैं। और जैसे विजय रामखोल ने वेरी राइटली ही सेड दैट हम लोग अगरतला में रैली नहीं कर रहे। हमारा कोई मतलब नहीं है कि अगरतला में
रास्ते में रैली करके टेंशन तनाव करें। हम लोग अस्तबल में बैठेंगे, अस्तबल में हमारा बात होगा, उसके बाद शांति से हम लोग अगरतला से वापस चले जाएंगे अपने गांव में। तो आई अपील टू द मीडिया कि अगर त्रिपुरा में हम सबको अगर शांति से रहना है, खुशी से रहना है, तो ये नफरत को थोड़ा सा हटाना पड़ेगा। और मैं भी जानता हूं कि ताली दो हाथ से बजता है। मैं अपने तरफ से आई वॉन्ट टू सेंड द मैसेज ऑफ पीस, आई वॉन्ट टू सेंड द मैसेज ऑफ ब्रदरहुड एंड यूनिटी, आप भी टू ऑल, और आप भी अपने तरफ से ऐसा हाईलाइट कीजिए कि सबको लगे कि हां हमारे जो इंडिजिनस लोग हैं जेन्युइन प्रॉब्लम है। ठीक है, आपको मेरा ग्रेटर त्रिपुरालैंड के स्टेट के डिमांड से शायद एकदम प्रॉब्लम हो, लेकिन आप ये नहीं बोल सकते हैं कि जो आज हमारे इंडिजिनस लोगों को मिल रहा है अंडर द प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन वो काफी है। इट इज एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल। और आई एम टेलिंग अमित भाई and to the Prime Minister, I am telling this to Rahul Gandhi, I am telling this to Priyanka Gandhi, I am telling this to Arvind Kejriwal. Look at our problem. 70 साल से what the Mizos have got protection, the Nagas have got constitutional protection, the Garos, Khasis and Jaintias have got constitutional protection, the people from Arunachal have got constitutional protection, the Meiteis, the Nagas have got constitutional protection. What have we got? What are we asking for? Are we asking to deny someone? No. We are asking to empower us. And listen to us. Acha, maybe Pradyot Manikya, Animesh Debarma, Vijay Rankol, we are wrong. Maybe we are wrong. I'm not saying we are right 100% all the time. But what is your view? What is your counter offer? When I say this is my demand, you give me a counter offer. What is your counter offer? Till now, what I've heard is जैसा है वैसे ही रहो और खुश रहो, और कुछ नहीं मिलने वाला। हम आपको पैसा दे देंगे, हम आपको राज्यसभा का एमपी का पोस्ट दे देंगे, हम आपको मंत्री बना देंगे। प्रद्युत मानिक्य को एमपी बनाकर, मंत्री बनाकर, अनिमेश को मंत्री बनाकर त्रिपुरा का कुछ सोल्यूशन नहीं होने वाला। आई डोंट वांट टू बी एन एमपी, आई डोंट वांट टू बी ए मिनिस्टर। वी वांट कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी इन राइटिंग for a demand for greater Tripraland in writing from the government or from any national party which wants to support a demand. बस that's it. स्टेट काउंसिल के बारे में जो बात था वो बीजेपी ने डिमांड किया था, उसके बारे में वो आप बीजेपी जनजाति मोर्चा से पूछिए कि 2018 में इलेक्शन के पहले क्यों नहीं इट्स इन द विजन डॉक्यूमेंट स्टेट काउंसिल। आज जनजाति मोर्चा क्यों चुप है? क्यों चुप है जनजाति मोर्चा? क्या हो गया है? पावर में आने के बाद आप चुप हो जाते हैं। आईपीएफटी ने त्रिपुरालैंड डिमांड किया था, 4 साल से क्यों चुप है? मैं तो आईपीएफटी को भी बोलता हूं कि अब छोड़िए, एक पार्टी बन के आइए और एक ही संघ दिल्ली में, हमारा डिमांड ऑलमोस्ट सिमिलर है। अगर आप आईपीएफटी, मुझे समझ में नहीं आता कि आज आईपीएफटी को जितेंद्र चौधरी क्यों नहीं बोलते कि कभी नहीं होगा, बीजेपी क्यों नहीं बोलता कि त्रिपुरालैंड कभी नहीं होगा आईपीएफटी को, मुझे क्यों बोलते हैं? पावर से आने से पहले लोग कुछ और बोलते, पावर से आने के बाद कुछ और बोलते। इनको प्रॉब्लम क्या है कि हमने पावर से आने से पहले भी ग्रेटर त्रिपुरालैंड बोला था, पावर में आने के बाद भी ग्रेटर त्रिपुरालैंड और जोर से बोल रहे हैं। हम लोग ने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। 12 मार्च का जो आपका यहाँ पर जनसमावेश होगा वो ग्रेटर त्रिपुरालैंड की डिमांड होगा एंड विलेज काउंसिल इलेक्शन। और आईपीएफटी चाह रहे हैं त्रिपुरालैंड के बारे में, तो आप लोग आईपीएफटी को निमंत्रण देंगे यहाँ पर? एब्सोल्युटली, मैं निमंत्रण देता हूं, आ जाइए। उससे पहले भी मैं मिलूंगा एनसी देबबर्मा से, मेवाड़ जमातिया से। मैं तो चाहता हूं एनसी देबबर्मा अपने इस स्टेज लाइफ में अगर हमारे संग आएंगे तो हम उसको सम्मानी करेंगे, इज्जत करेंगे। मेवाड़ को मैंने बचपन से देखा है, अनिमेश जानता है, हम लोग, मैं मेवाड़ के फैमिली को मैं बहुत पसंद करता हूं, प्यार करता हूं। मैं क्यों नहीं उनको मैं अपने लिए फाइट करने के लिए तो नहीं आया हूं। मैंने तो क्लियरली बोल दिया है कि मैं एमपी और मंत्री या एमएलए नहीं बनना चाहता हूं। तो आप लोग आइए, जगह है, लेकिन हमारे लोगों को और बेवकूफ मत बनाइए। आइए हमारे साथ, एक मंच में आइए। अगर हम एक आवाज में, जनजाति मोर्चा शुड कम, गणमुक्ति परिषद शुड कम, एसटी सेल शुड कम, और अगर हमने एक आवाज में कुछ डिमांड किया तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को महसूस होगा कि कुछ प्रॉब्लम है और तब कुछ सोल्यूशन निकलेगा। एक दूसरे से झगड़ के क्या मिल रहा है हम लोग को? एक क्वेश्चन ये है कि पिछले 1 साल की बात करें
इसलिए एक्सल की बात करें तो IPFT को आप लोग बुलाते हैं तो कभी कभार आते हैं इसके बाद चले जाते हैं। पिछले साल भी कुंभ में आपने ऑफर नहीं किया, इसकी विषय में क्या? मैं सबको बुलाते रहूंगा जब तक मेरे पास दम है, क्योंकि यूनिटी डज नॉट स्टॉप इन वन इन्विटेशन. यू हैव टू कीप ऑन टॉकिंग टू पीपल, यू हैव टू कीप ऑन इन्वाइटिंग पीपल. दिल बड़ा होना चाहिए. दरवाजा एक बार बंद होने से इसका ये मतलब नहीं होता कि हमेशा के लिए बंद होता है. IPFT के लोग भी हमारे ही टिपरासा है, हमारे ही कम्युनिटी के हैं. उनका दिल भी, उनमें भी बहुत अच्छे लोग हैं. मैं चाहता हूं कि वो आए, और अगर मुझे एक बार क्या 100 बार भी कोशिश करना हो, नॉट ओनली IPFT, TPF, जितेंद्र चौधरी, जनजाति मोर्चा, I will keep on extending my olive branch because I want a constitutional, please understand, a constitutional solution, not a political solution. Political solution is 2000 करोड़ का पैकेज, 3 मंत्री, 10 MLA, 15 सीट. मुझे वो सब नहीं, मुझे constitutional solution चाहिए. That's it. Thank you.